जी, थैंक यू मारिया। और आई वुड लाइक टू नो, वालेकुम अस्सलाम जी, इतरत, आयशा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच मिसाल। I'm literally very sorry because of there some problem happened, and okay, perfect, thank you Maria. I'm so happy that you guys are there still, and you are responding very well. Thank you so much. So let's start with today's lecture, which is okay, which is again food and nutrition. And it's my request again, kindly be into the lecture, और इसको अपने mind में आपने, I have made it properly in that circumstances in which you can remember some pictures in your mind. So it is again a pictorial one, जिसमें आप जो है अपनी तमाम तर attention अगर सिर्फ screen पे देंगे, तो you will be able to absorb the extract of the concept or the thing which we are going to discuss today. So that is the food and nutrition. Last time हम लोगों ने macronutrients और micronutrients देखे थे, and I will also try to go a bit fast today because थोड़ा सा एक तो हमारा time lapse हो गया हुआ है, but again what I would like to share with you कि यहाँ पे जो चीजें हमें देखना है वो थोड़ी सी छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन दे आर इम्पोर्टेंट एज फार एज योर एमसीक्यूज आर कंसर्न. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. आप लोगों को जहां पे भी कोई प्रॉब्लम आए, इफ यू वांट टू हैव सम क्वेरी, माय चैट बॉक्स इज ओपन, so you can talk to me and you can write your message over here, right? So let's begin. So today's contents are, क्या है हमारे contents आज जो है वो minerals and trace elements को हम देखेंगे, and if we will be able to get some time over here, so we will definitely look into the uh, nutritional profile of the principal food, because already I got the lecture going to be start, it's almost 10 minutes have been gone, तो वो थोड़ा सा हमारा lapse गड़बड़ हो गया है यहाँ पे. So let's begin. ये क्या है जो आपके सामने पड़े हुए हैं? Can you do you have some idea? These all are calcium, ferrum, zinc supplements. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको supplementation के बारे में भी थोड़ा सा idea देना है. That's why I selected this picture. So let's take about the list what we are going to see over here today. That are the minerals: calcium, phosphorus, sodium, potassium, magnesium. ये सब available हैं under the heading of minerals, and we will see the trace elements as well. Trace elements भी हमारी body में उतने ही important हैं जैसे macronutrients होता है, जैसे micronutrients होता है. If you know that about कि अगर iron body में insufficient हो, तो the person can develop anemia, and which can lead to the nutritional anemia, and which can lead into the very much disastrous situations as well. So these are much important as far as your clinical work is concerned. Iodine, fluorine, zinc, copper, cobalt, chromium, selenium and molybdenum, ये तमाम चीजें जो है वो as a trace element they are present over there. So let's see the calcium. कैल्शियम की क्या हो रहा होता है कि एक्चुअली हम जो बिगिन कर रहे हैं अपनी बात, वो कैल्शियम के साथ इसलिए बिगिन कर रहे हैं कि ये एक तो टॉप ऑफ द मोस्ट आपके पास मिनरल्स की हेडिंग में यू सी इट, एंड द लेटर वन थिंग व्हाट यू सी कि ये हमारी बॉडी का बड़ा ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हमारी एक जो नॉर्मल बॉडी है उसमें मिनरल एलिमेंट जो है बॉडी का वो इसी के थ्रू आपको मिल रहा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि 98% जो है ये बॉडीज के अंदर, बोन्स के अंदर जो है वो रिटेन कर जाता है. तो अगेन आप यू कैन सी दैट डायनामिक इक्विलिब्रियम इसका डेवलप होता है विद द इंटरेक्शन ऑफ विटामिन डी, पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन. इन सभी का आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शंस होते हैं, और ये एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन के लिए और एक दूसरे के साथ को इंटरेक्शन ऑफ द वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दीज. सो फंक्शंस में आप देखें इस पिक्चर में बड़ा ही क्लियर आपको नजर आ रहा होगा. इफ यू कैन सी माय लाइट ओवर हियर, so this is the pointer.
सेलुलर मेटाबॉलिज्म, वूंड हीलिंग, नर्व इम्पल्सेस, मसल कंट्रैक्शन, आपकी बोन स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। और कोगुलेशन ऑफ द ब्लड में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ये सब आपने देखा, ये सब इसकी इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शंस। साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं, सेल मेम्ब्रेन से एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो आपका आरएमपी जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है, और उसके बाद जो है वहाँ पे कोई ना कोई या तो कंट्रैक्शन या तो रिलैक्सेशन का मैसेज पास ऑन हो रहा होता है थ्रू समहाउ इट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम गेटेड चैनल्स। ये in the synthesis of the hormones and enzyme, it is also again very important. So let's see what are the sources available for it. The sources available for it are the milk है, milk products है, eggs है, fishes हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो अफोर्डेबल सोर्सेज में अगर आप बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स, मिल्क, ये सब इसकी अवेलेबिलिटी है। तो ऑल्दो वी कैन सी दैट कि देयर आर सम अदर सोर्सेज, बट ये कि आपने देखा है कि अगर आपके पास विटामिन डी ना हो तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी अच्छी नहीं होती। तो जैसे हमने पहले एक बात क्लियर की थी कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन विटामिन डी एंड कैल्शियम, तो वो रिलेशन ये है कि विटामिन डी शुड बी देयर टू मेक द कैल्शियम प्रॉपरली एब्जॉर्ब। ये आपको नजर आ रहा है कि अगर जो डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी क्या है जनाब, देयर इज नो क्लियर कट एविडेंस, कोई ऐसा डायरेक्टली हम नहीं बता सकते कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन बट यू कैन सी दैट सम साइंस ऑफ द क्लिनिकल डेफिशिएंसी ओवर देयर, मसल क्रैम्प्स, रफ स्किन, इंसोम्निया, टूथ डिके, हेड स्वेटिंग, ब्रिटल नेल्स, ये सब विटामिन कैल्शियम की जो है वो डेफिशिएंसी के साइंस आपको नजर आते हैं, ठीक है ना। अगर तो विटामिन डी जो है वो इनटेक एडेक्वेट, नो रिलेटेड डिजीज आकर इवन विद लो कैल्शियम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर तो विटामिन डी वो अच्छे से खाता है या सन एक्सपोजर उसका अच्छा है कि बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है वो अच्छे से बन रहा है, सो देयर इज नो नीड कि वहां पे इतनी हद तक नहीं गिरते कैल्शियम के लेवल्स, इवन इफ देयर कैल्शियम इनटेक इज लो एज वेल, ठीक है ना। तो तब भी ये ऐसा नहीं होता कि डेफिशिएंसी के साइंस आ जाए, बट देयर इज द कनेक्शन ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन के लिए और एक दूसरे के कामों के लिए जरूरी होते हैं। तो ऑलमोस्ट ये आपके एग्जाम में यूजुअली दे आस्क यू इन समहाउ द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, they can ask you 600 milligram of calcium is recommended for the adults, right? And there are certain, so let's see what else is. अब यूजुअली अगर हम देखें तो हमारे पास कैल्शियम को खत्म करने के बाद वी कैन एंटर इनटू द फेज ऑफ जिसको हम समझते हैं कि हम अपनी मजीद नेक्स्ट के अंदर जाएं, वो फास्फोरस है। फास्फोरस भी हमारे पास बोन्स टीथ की फॉर्मेशन में एक प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मेटाबॉलिज्म में इसकी तमाम इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। तो काफी सारे फूड्स में ये इवनली मतलब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो ऐसा हार्डली ही होता है कि इसकी डेफिशिएंसी हो, राइट। तो सोडियम के बारे में भी आप देखें तो तमाम तर बॉडी फ्लूइड्स में आप सोडियम को देख रहे होते हैं और ये हो रहा होता है प्रेजेंट, एंड यूजुअली यू सी दैट तकरीबन 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एडल्ट बॉडी, ठीक है। और अगर नहीं होता है, सोडियम की कहीं डेफिशिएंसी हो रही होती है, तो वो दैट लीड्स टू द मस्कुलर क्रैम्प्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपने याद रखना है। फिर आ जाते हैं हम सोडियम की डेली रिक्वायरमेंट। उन्होंने कहा वो दैट इज बेस्ड ऑन क्लाइमेट, ऑक्यूपेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी। व्हाई दे आर कॉलिंग दिस थिंग, जस्ट बिकॉज कि अगर इफ द पर्सन इज वर्किंग आउटसाइड इन द सनी एरिया, ठीक है, वो पूरा दिन सुबह से शाम तक, इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मेसन ओवर देयर, तो a mason is working since the morning till the dawn timings, तो अगर वो वहां पे इस तरीके से हो रहा है तो वहां पे क्या होगा कि उसको पूरा दिन वो एक्सपोज है सन्स के साथ, तो उसके अंदर ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा उसको हाइड्रेशन उसकी बॉडी को रिक्वायर होगी, एज फार एज उसके साथ साथ मिनरल्स कंटेंट, ठीक है। सो अगर हम यहाँ तक देखें तो नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है दैट इज अबाउट 5 ग्राम पर डे, बट इफ समवन इज कंज्यूमिंग मोर देन 10 ग्राम्स पर डे, तो आप सोच सकते हैं कि वो जो वहाँ पे डेफिनेटिव टेंडेंसी है कि वहाँ पे मसले मसाइल बढ़ जाएं और ब्लड प्रेशर के लिए वो बंदा जो है वो प्रोन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी
right? So, potassium is again important. It's a human content of the body. 250 gram of the potassium is necessary. It's mainly found in widely food stuff. जैसे हमने बात की थी, काफी सारी चीजों में अवेलेबल है, ठीक है? वेजिटेबल्स में भी, फ्रूट्स में भी, मिल्क में भी, और इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर, ठीक है? यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाली है, वेसो एक्टिव होता है। आपकी जितनी भी वेसल्स हैं उनके अंदर जो है वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है और मेटाबॉलिक टिश्यू की जो नीड्स होती हैं उसको कंप्लीट करने में हेल्प आउट करता है, जितनी भी मेटाबॉलिकल नीड्स हैं। Okay, it is also constituents of the bone and present in all the body cells. Adult body contains almost 25 gram of it, right? So present, usually what is happening, so अगर half of its skeleton while remaining in the essential for the normal metabolism of calcium and potassium, तो कहते हैं तकरीबन आधा भी available हो तो ये काम हो सकता है, ठीक है? अगर ये नहीं होता है, ठीक है ना, अगर मैग्नीशियम उस क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं है तो देयर आर सर्टेन साइंस जैसे इरिटेबिलिटी, टेटनी, हाइपररिफ्लेक्सिया, दिस कुड बी हैपन. So magnesium is again important and it is present in almost all body cells, right? Deficiency को आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि it's a chronic alcoholics में cirrhosis of liver, toxemia of pregnancy, PCMs, and malabsorption syndromes. ठीक है, protein calorie malnutrition, right? So iron, we come up to the iron. Iron is again important. Human body contains 3 to 4 gram of iron, from 60 to 70% in is present in the blood. और तमाम तर आपको इम्पोर्टेंस इसलिए पता चलेगी कि once you will go and sit into the your hospitals as working as like health professionals, आप देखेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज मिल रहे होंगे at the level of pediatrics as well and at the level of the pregnant women as well. तो आप जब भी इसको इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए जो है दिस इज फार मोर इम्पोर्टेंट. You can say this could be a reason of all this, the conditions, mainly the socio-economic conditions could be the reason of it. But see what is happening over here. ठीक है जी, तो फंक्शंस क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है उसमें इम्पोर्टेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मसल एक्टिविटी, कैटेकोलामीन्स मेटाबॉलिज्म, ये तमाम तर चीज़ों में आयरन की ज़रूरत पड़ रही होती है. एंड डेफिशिएंसी कैन लीड व्हाट कैन इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम बाय डिमिनिशिंग टी सेल्स एंड एंटीबॉडीज. Nowadays, how much important is that to be to get prevention and to be secure from the coronavirus? What is everything is leading you towards? किस चीज पे बात हो रही है सबसे ज्यादा? To make your immunity better, is it? Yes, immunity. Yes, Matiba. तो बात ये है कि if you are fit and fine from your inside, so your body you will be able to fight against any bacteria, any virus, any killing microorganisms, right? So आपने देखा होगा कि some the person इसमें अब आप immunity better करने के लिए what you can do nowadays, if you are locked in your home, then what you can do, that you can do some positive meditations, right? Some to develop your good habits of your healthy eating, ठीक है ना, ये सब चीजें आपके लिए important हैं. And to do some little bit of exercise within the home or in your lawn, you can do some little things like that, ठीक है, to keep your body active. This is very much important for the building of immunity. Yes, you can use supplements, exactly. Nowadays calcium
के साथ साथ विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, vitamin C is very important. Even zinc supplements are really advisable nowadays. वैसे भी हैं लेकिन आजकल के हालात के हिसाब से I'm just telling to you that we should work more on the preventive measures. You know that prevention is better than cure वाली बात जो है that is 110% correct, because if someone is preventing and if someone is successful in preventing of that disease, obviously जो भी उसके consequences हैं वो better होंगे, ठीक है ना, rather than कि वो disease हो जाए और फिर आप उसका क्योर करें तो वो सोशो इकोनॉमिकली आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन हो सकता है, God forbid. So but again, so deficiency हम देखते हैं यहाँ पे किसी भी चीज की हो और इम्यूनिटी के ऊपर अटैक कर रही हो तो जरूरी है कि आप जो है उसके ऊपर इम्पोर्टेंस रखें और उसके ऊपर अपना आय रखें कि जो भी कुछ हो रहा है वहां पे वो आपकी अंडर द कंसिडरेशन उसका होना बहुत जरूरी है. सो लेट्स सी व्हाट आर द सोर्सेज. आपके पास हीम आयरन के भी कुछ सोर्सेज हैं, कुछ नॉन हीम आयरन के भी सोर्सेज हैं. फॉर एग्जांपल लिवर, मीट, पोल्ट्री एंड फिशेस, ये सब जो है वो आपकी हीम आयरन के सोर्सेज हो गए. बाकी जो वेजिटेबल्स और ओरिजिन आपकी सीरियल से हो रही है, या नट्स हैं, ऑयल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, जैगरीज हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब चीजें दे गिव यू द नॉन हीम आयरन थिंग्स. तो इफ यू सी दैट अ बिट ऑफ इट, हम ये समझते हैं कि जितनी बायो अवेलेबिलिटी यानी कि उनका अवेलेबल होना आफ्टर द ऑल मेटाबॉलिज्म इन योर बॉडी, इट इज मच मोर बेटर इन केस ऑफ हीम आयरन, ठीक है. और जो कुछ ऐसे जो फाइट्स या कार्बोनेट्स या ऑक्सलेट्स जो वेजिटेबल्स में प्रेजेंस होते हैं वो जो है वो नॉन हीम आयरन को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर देते हैं और उसके लिए फिर वो एब्जॉर्प्शन जो है वो उसकी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है ना. तो थोड़े बहुत हमें प्रोमोटर्स चाहिए होते हैं, नीड टू गेट इट एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, and then absorbed iron is transported to the plasma ferritin, to the liver, spleen and bone marrow and the kidney, where it gets stored and it is used for the utilization for the RBC production. So let's see what happens if the iron losses are there. अगर आयरन लॉस होता है and that is about 1 milligram in male and 12.5 milligram per 28-day cycle in a menstruating female. This is very much important. So major iron losses could be अगर आप देखें तो उनकी जो एग्जांपल है वो हेमरेज की शक्ल में भी हो सकती है या फिर कुछ बेजल लॉसेस भी हो सकते हैं. तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस कैन डू दैट आयरन लॉस, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो अगर मैनोरीजिया या फिर उसकी जैसी कंडीशंस और मजीद आप दे सकती हैं, ठीक है. तो बस थोड़ा सा उन्होंने एक चीज बताई है कि थोड़ा सा जो ब्लड लॉस में कमी उन्होंने देखी वो ओसीपीज के साथ थी. दैट वाज थिंग कि अगर इफ समवन इज टेकिंग ओसीपीज, देयर इज the studies have shown that there is decrease in the blood loss by 50%. So let's see what's happened with the iron deficiency. That is characterized by first stage, decrease in the iron stores, right? The second stage, latent iron deficiency, and third stage में overt iron deficiency, ठीक है ना. सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में से क्या होगा, आयरन स्टोर्स कम होना शुरू होंगे और फिर वो एक लेटेंसी के फेज में आ जाएगा कि ना बहुत शदीद अभी डेफिशिएंसी डेवलप हुई है ना ही कम, एक मिडिल स्टेज आ जाएगा एंड देन फिर इट विल गो इनटू द ओवर्ट आयरन डेफिशिएंसी. एंड रिजल्ट क्या होगा, that will be the development of nutritional anemia, ठीक है ना. Beside anemia, what happened? There is impaired cell-mediated immunity, जिसकी बात अभी हमने की थी. Reduced resistance to infections, increased morbidity and mortality, diminished work performance. ये बहुत ही important है because if someone is lethargic, if someone is getting more prone towards any infection in the time to time in the body, so the body is getting weaker and weaker again. So this is a vicious circle. But the important thing, this is still preventable by changing your habits, by taking good amounts of food, by taking good diet and good supplementation. You can overcome this thing. ये बहुत ही important है as far as your examination point of view is concerned. तो ये पूछा जा रहा होता है आप लोगों से कि कितना ग्राम पर डीएल जो है वो एनीमिया के कट ऑफ पॉइंट्स हैं. तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो अडल्ट मेल्स के लिए 13 है, अडल्ट फीमेल्स के लिए जो नॉन प्रेग्नेंट है वो 12 है, अडल्ट फीमेल्स जो प्रेग्नेंट है उनके लिए 11 है,
जस्ट बिकॉज देयर इज हीमोडाइलेशन का फैक्टर आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि बॉडी का फ्लूइड लेवल जो है वो बढ़ा हुआ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो दिस इज अ बिट माइनर चेंजेस इन बोथ ऑफ दिस, राइट? कैन यू सी दैट? ओके. सो children में जो 6 months to 6 years है, that is about 11, and 6 to 14 years is about 12. तो ये सब जो है वो आपके कट ऑफ पॉइंट से नहीं है कि, और ये आपका एग्जाम क्वेश्चन भी है और ये इसी तरह एज इट इज आता भी है. सो इवेल्युएशन आप कैसे करते हैं? आयरन स्टेटस एक बॉडी का आप चेक कैसे करोगे? आप ऐसे चेक करोगे कि हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशंस देखोगे, सीरम आयरन कॉन्सेंट्रेशन, सीरम फेरेटिन एंड सीरम ट्रांसफेरेंस सैचुरेशंस, डेली आयरन जो है आपका वो भी आप मॉनिटर कर सकते हैं. बट अगेन आपके पास जो बायोकेमिकल कहने चाहिए कि स्टडीज अवेलेबल है वो दैट आर मच मोर रिलायबल. और आप उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे वो सीरम फेरेटिन, मोस्ट सेंसिटिव टूल का मतलब क्या है? काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है और फौरी तौर पे आपको बताता है हु इज इल हु इज नॉट. परफेक्ट. तो आयोडीन के ऊपर अगर वी टॉक अबाउट, देयर इज सम एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर देयर. ठीक है. Required for thyroid hormone synthesis, required in minute amounts for normal growth and development. सही. आयोडीन भी हमारे पास एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है. आपको पता ही है कि थायराइड की सिंथेसिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न्स के लिए इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. सोर्सेज मेनली सी फूड है, कॉड लिवर ऑयल है. 90% जो है वो आपको फूड से मिल रहा होता है और 10% जो है वो आपको ड्रिंकिंग वाटर से मिल रहा होता है. बट हम देखते हैं कुछ जियो केमिकल इन नेचर का मतलब क्या है कि it varies with the condition of the ground and the availability of iodine in the water in the nature as well. ठीक है. किस तरीके से वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है. कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आयोडीन की जो वो ज्यादा क्वांटिटीज अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और कुछ एल्टीट्यूड्स ऐसे हैं जहाँ पर नहीं है. लेट वी विल सी दिस all these things later on. Just let me show you a picture which is showing you a thyroid gland which is enlarged. ठीक है. एक नॉर्मल जो थायराइड ग्लैंड है उससे बड़ा बड़ा सा आपको ये ग्लैंड यहाँ पे नजर आ रहा है. ठीक है. नॉर्मल शेप के साथ उन्होंने एक्सैजरेट किया हुआ है इसको. सो दिस इज कॉल्ड एज गोइटर. अब होता क्या है गोइट्रोजेंस में, आपने इनके नाम कैसे डाले? उन्होंने कहा भाई ऑब्वियसली इन अगर इफ द आयोडीन यूटिलाइजेशन जो है वो थायराइड ग्लैंड के साथ इंटरफेयर होगी तो उसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ गोइटर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. तो डाइटरी गोइट्रोजेंस में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो चीजें अवेलेबल हैं आपके पास, वो कैबेज है, कॉलीफ्लावर्स है. ठीक है. एंड दे मे अकर इन फूड एंड वाटर एज वेल. तो आपके खानों में अगर किसी जगह पे साइनोग्लाइकोसाइड्स और थायोसाइनाइड्स की जो है वो ग्रेटर इंपॉर्टेंस है इस टर्म्स में कि वो डाइटरी गोइट्रोजेंस मानी जाती हैं जो गोइटर करवा सकते हैं. राइट. सो डेफिशिएंसी जो है वो मोस्ट कॉमन हो रही है यहाँ पे. तो वो गोइटर हो रही है. वो क्या हो, किस तरीके से? मेन स्पेक्ट्रम इसका आप देखते हैं कि गोइटर तो बन गया. अब वो somehow it could be because of the both things can happen. There is a major spectrum of the disease. यानी कि ये डिजीज का स्पेक्ट्रम कैसा हो सकता है कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो जिन्हें आप आईडीडीज भी कहते हैं, उसमें आपको हाइपोथायरॉयडिज्म स्टार्टिंग से लेके रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट, इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शंस, इंक्रीज रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड स्टिल बर्थ, न्यूरोलॉजिकल क्रेटिनिज्म. ठीक है. और इसके अलावा मिक्सो एडेमेटिस क्रेटिनिज्म जो है यहाँ तक के बाद जा सकती है इफ डेवलपमेंट ऑफ इफ द आयोडीन डेफिशिएंसी. इसकी कंप्लीट जो स्पेक्ट्रम्स हैं वो आपको आपके सामने नजर आ रहा है. ठीक है. तो ऑलमोस्ट 150 माइक्रोग्राम्स ऑफ आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द अडल्ट्स एंड एज पर WHO 250 माइक्रोग्राम पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी नीड थोड़ी सी ज्यादा होती है और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार कोई प्रेग्नेंट लेडी हो जाती है तो देयर आर मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस दैट शी कैन हैपन विद हर एंड विद हर बेबी एज वेल. ठीक है ना. तो आप गुड अमाउंट जो है, अभी हमने बात की थी बैलेंस डाइट और गुड ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेप्ट इन दोज रीजन वेयर द फूड और द वाटर आर डेफिशिएंट इन वाटर. तो वहां के पानी के साथ अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं तो आपको
ओवर जो है वो सप्लीमेंटाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है। सो अगर आप असेसमेंट करना चाहते हैं कि आयोडीन डेफिशिएंसी जो है वो किस तरीके से हो रही है, इफ यू वांट टू इवेलुएट, तो आप ये तमाम इंडिकेटर्स जो हैं इनके साथ जो है वो उसको देख सकते हैं कि प्रेवलेंस ऑफ गोइटर कैसी है, प्रेवलेंस ऑफ क्रेटिनिज्म जो है वो इस कम्युनिटी में कैसा है। आप किसी होल ऑफ द बंच ऑफ द कम्युनिटी यू कैन असेस द बायोकेमिकल मार्कर्स एज वेल, यूरिन आयोडीन कंसंट्रेशन या एक्सक्रीशन एज वेल, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ थायराइड फंक्शन, T3 T4 सीरम TSH एज वेल। तो ये सब आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो सेंसिटिव इंडिकेटर समझा जाता है कि न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म कितनी हो रही है इस कम्युनिटी में, that is the very much sensitive indicator of environmental iodine deficiency. This is again question of your MCQ, and it comes in the examination. If you see the fluorine, this is the most abundant element in nature as combined from कंबाइंड फॉर्म में आपको मिल रहा होता है। फ्लोरीन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर और फूड से हमें मिल रहा होता है, एंड इट्स अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन एंड फॉर्मेशन ऑफ द डेंटल एनामल। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट है बोन्स में, टीथ में, तो इसका कुछ ताल्लुक जो है वो सॉर्ट ऑफ दैट आपके बोन्स से या स्केलेटन से ज्यादा होता है। मेजर सोर्सेज यही है कि पानी में हमें मिल रहा होता है। कुछ एंडेमिक एरियाज होते हैं, फ्लोरेसेस एंडेमिक एरियाज, जहाँ पे ज्यादा ज्यादा मिल रहा होता है। और ऐसी कौन सी फूड है जिसमें ये ज्यादा अवेलेबल है, वो सी फिश है, चीज है, टी है, इन सब चीजों में फ्लोरीन जो है वो ज्यादा हो रहा होता है। इसकी भी डेफिशिएंसी या एक्सेस जो है वो टू एज सोर्ड से कहा जाता है कि अगर डेफिशिएंसी होती है तो भी जो है वो इट कैन लीड टू सम ड्रास्टिक प्रॉब्लम्स, एंड इफ देयर इज एक्सेस इट कैन आल्सो लीड टुवर्ड्स ड्रास्टिक इफेक्ट्स ऑफ दिस। ठीक है, होता क्या है कि एक्सेस अगर है तो वो डेंटल या स्केलेटल फ्लोरोसिस का सबब बनता है, एंड इफ द inadequate intake can lead to the dental caries, so it has to be balanced। इसकी भी बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादातर कंट्रीज में 0.5 से 0.8 मिलीग्राम पर लीटर इज एन एक्सेप्टेड रेंज, राइट, बट जबकि टेम्परेट कंडीशंस में जो है वो 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर भी जो है वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि टेम्परेट रीजन है, गर्म इलाके हैं, ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। अदर ट्रेस एलिमेंट्स में आप देखते हैं जैसे कि आपके पास आते हैं जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, सिलेनियम है, मोलिब्डेनम। तो जिंक को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी जो डिस्कशन किया था कि तकरीबन मोर देन 300 एंजाइम्स की जो कंपोनेंट है वो जिंक है। तो जिंक को हमने क्यों इम्पोर्टेंट माना है एज इम्यूनिटी बूस्टर, जैसे कि आप देख सकते हैं काफी सारी चीजों के अंदर जो है वो इसकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इफ योर बॉडी इज डेफिशिएंट इन जिंक, there will be a lot of problems you can see as far as the deficiency is concerned. Growth failure, sexual infantilism, and loss of taste and delayed wound healing, इस तमाम चीजें जो है वो जिंक की डेफिशिएंसी से हो सकती। Again, clinical disorders can happen in which liver diseases, pernicious anemia, thalassemia, ठीक है, लो लेवल्स आपको नजर आते हैं इन तमाम तर डिजीजेस में। बिकॉज देखें आपकी बॉडी जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है, वो कोई एक मशीन नहीं है जिसके अंदर आप एक चीज डाल देंगे तो वो सिर्फ उसी चीज का काम करेगी और आप एक बटन दबाएंगे और वो काम होना शुरू हो जाएगा। योर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स थिंग्स टुगेदर। आपके अंदर आप जो खाते हो वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, योर इकोनॉमिकल फैक्टर्स, योर सोशल फैक्टर्स, योर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, आपके कल्चरल हालात क्या हैं, ये तमाम कर चीजें मिलके आपका बॉडी मेकअप बनाते हैं एंड देन योर बॉडी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ऐसा नहीं होता कि हमने कोई एक चीज डाली और उसके जो है वो रिजल्ट्स आपको आना शुरू हो जाएंगे। सो योर बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ मशीनरी which is dependent on so many things together। तो अगर आप जिंक की सप्लीमेंटेशन करते हैं एंड विद ओरल डिहाइड्रेशन यू कैन हैव सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी ऑफ acute and persistent diarrhea as well।
ठीक है, पीडियाट्रिक्स में जिन लोगों को इंटरेस्ट है उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कि पर्सिस्टेंट डायरिया की ट्रीटमेंट में दे यूजुअली गिव यू अ सिरप जिंकैट, ठीक है ना, जो बच्चों को दिया जा रहा होता है। ये क्यों दिया जा रहा होता है? टू टू ग्रो, उनके अंदर जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने के लिए, ठीक है ना, हेल्दी एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंटेस्टाइन को बढ़ाने के लिए। तो जिंकैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सिरप which is used to be given to the pediatric patients. तो कॉपर भी इसी तरह, it is widely distributed in nature, ठीक है ना, an adult body contains almost 100 to 150 milligram, ठीक है ना। अभी तक जो पता चला है उसके हिसाब से न्यूट्रोपीनिया इट कैन कॉज, इफ द कॉपर इज डेफिशिएंट इन द बॉडी, न्यूट्रोपीनिया कैन बी हैपन। और अगर हाइपोक्यूपरीमिया की आप बात करें तो वो दैट इज सीन इन द नेफ्रोसिस एंड विल्सन्स डिजीज। और जबकि आपको नजर आ रहा होता है हाइपरकोप्रीमिया भी हो रहा होता है बिकॉज एक्सेसिव इनटेक ऑफ कॉपर कुकिंग यूटेंसिल्स। अभी तो नहीं, लेकिन प्रीवियस जमानों में इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता था एंड वहां पे ये चीजें नजर भी आती थी एंड दैट कैन एसोसिएट सेवरल acute and chronic infections as well, right? तो डेली रिक्वायरमेंट इसकी तकरीबन 2.0 मिलीग्राम पर डे है। इसी तरह आप कोबाल्ट को देख लें, इट्स अ पार्ट ऑफ विटामिन B12 मॉलिक्यूल और फर्स्ट स्टेज में जो है वो हार्मोन प्रोडक्शन की ये जरूरी होता है एंड देयर इज नो एविडेंस इज एफिशिएंटली अवेलेबल for regarding as far as its deficiency is concerned. It may interact with iodine and affects its utilization. क्रोमियम भी इसी तरीके से हमारी बॉडी का एक छोटा सा ट्रेस एलिमेंट है और जो कि सजेस्टिव है, एविडेंस दैट इट प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन रिलेशन टू द कार्बोहाइड्रेट एंड इंसुलिन फंक्शंस एज वेल। सो सेलेनियम भी इसी तरह का है, थोड़ी बहुत इसके ऊपर वर्किंग हुई है, but selenium administered to the children with kwashiorkor resulted in significant increase in the weight। तो ये आपने देखा कि जो न्यू रिसर्चेस अभी हुए हैं और इसके ऊपर जितना काम हो रहा है उससे नहीं पता चला है कि अगर kwashiorkor में इसको दिया गया तो उन बच्चों में आपको सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वेट जो है वो मिला है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो विटामिन ई के साथ कनेक्टेड है और एंड उसका रिजल्ट हमें ये नजर आता है कि थोड़ा सा इम्यूनिटी के ऊपर इफेक्ट आता है, दैट रिड्यूसेस द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। सो व्हाट डज इट मीन कि ये तमाम तर ट्रेस एलिमेंट्स हो जाएं या तमाम तर आपकी जो माइक्रो और न्यूट्रिएंट्स हो जाएं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं अपनी अपनी जगह पे। इसीलिए बार बार ये बात की जाती है टेक गुड एंड बैलेंस डाइट, टेक हेल्दी बैलेंस डाइट, ठीक है। तो मोलिबिडियम इज अगेन, अगर एक्सेस एब्जॉर्प्शन इसकी हो रही है तो बॉम डिफॉर्म जो बोनी डिफॉर्मिटीज है उसकी तरफ जा सकते हैं। डेफिशिएंसी भी जो है वो इस एसोसिएटेड विद माउथ एंड ओरोफेरेंजियल कैंसर्स। न्यूट्रिएंट्स को अगर आप उठा के देखें तो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज ये another topic which is much of great importance, that is dietary antioxidants, and it is again your exam question। ये एज इट इज आपके एग्जाम में आता है और इसके हर एस्पेक्ट के ऊपर बात हो सकती है, एमसीक्यूज में भी और एससीक्यूज में भी इवन। तो डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स जो है हमारे पास जो अवेलेबल है वो विटामिन ई, सी, बीटा कैरोटीन और सेलेनियम का नाम इसमें बहुत क्लियरली आप सुनते हो। और जो नॉन न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें आपके पास प्लांट फिनॉल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, क्यूमेराइन्स हैं, बेंजाइल आइसोथाइनेट्स हैं, कैफीन है, ठीक है, ये सब चीजें अवेलेबल हैं। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंड कैटलीज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज ये सब अवेलेबल हैं। अब इन्हीं चीजों की अगर आप बात करें, यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल की गई है ROS। ROS आर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। अब अगर एक बॉडी के साथ ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो कंटिन्यूअस मेटाबॉलिक जो भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही होती है उसका रिजल्टेंट होता है। एंड इफ द टॉक्सिन्स आर मोर टॉक्सिन्स इन योर बॉडी, सो योर बॉडी विल प्रोड्यूस मोर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ठीक है ना। तो वो आपकी एजिंग में और सेवरल न्यूट्रिशन रिलेटेड क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट इफ समवंस डाइट इज गुड इन डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स इन कंटेंट, तो आप समझ सकते हैं कि वो इस इफेक्ट को रिवर्स आउट करने में हेल्प आउट करेगी, ठीक है।
तो सोर्सेज अभी हमने देख ली, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम, स्पाइसेस, टी, सीरियल्स, ये सब चीजें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स का गुड सोर्स हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलरली अगर आप ईसी को एंजाइम क्यू और ग्लूटाथायोन की बात करें तो ये सिनर्जिस्टिकली एक दूसरे के साथ साथ साइकिल्स में जो है वो वर्क करते हैं। और दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि जितना भी बॉडी के अंदर डैमेज होता है फ्री रेडिकल्स के जो अभी हमने बात की थी उसको ओवरकम करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट और रिपेयरिंग किस्म का इनका रोल होता है। ऑलमोस्ट 500 टू 600 ग्राम पर डीएल जो है वो आपके लिए एक हेल्दी सब्जेक्ट के लिए इज वेरी नेसेसरी। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें। जिसके बाद आप हाई रिस्क ग्रुप कौन होता है जैसे कि प्रीमेच्योर इन्फेंट्स हो सकते हैं, स्मोकर्स या अल्कोहलिक, ये वो लोग हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेंट डैमेज बहुत ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं और उनके अगेंस्ट एक कॉन्स्टेंटली फायरिंग एंड हायरिंग फायरिंग का कह लें कि आप एक रोल चल रहा होता है। और जैसे ही वो पार्टिकल हायर हुआ है बॉडी के अंदर और आपकी बॉडी उससे फायर करना शुरू कर देती है तो एक जंग का माहौल उस बॉडी में जो है वो कांस्टेंट रहता है बिकॉज ऑफ देयर आर सर्टन आउटसाइडर्स एज वेल। आउटसाइडर्स कौन है? जो स्मोक के पार्टिकल हैं, डस्ट के पार्टिकल हैं। अल्कोहलिक्स के अंदर क्या है कि वो किसी न किसी ऐसे एंजाइम के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और आपकी बॉडी से आपके जो जरूरी विटामिन है, फॉर एग्जांपल विटामिन बी, जैसे थायमीन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी डैमेज कर रहा है और फिर उसके रिजल्ट में आपके पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रहे हैं। वही बात जो अभी हमने पहले भी की, पॉल्यूटेंट्स को एक्सपोज है, कार्सिनोजेंस को एक्सपोज है, क्रॉनिक इन्फेक्शंस किसी को रहते हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, या जेरियाट्रिक पॉपुलेशन। जेरियाट्रिक क्यों? ओल्ड पीपल होते हैं ये और उनमें डेफिनेटली इस्तेमाल होते 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 आपकी बॉडी, आपके वेसल्स, आपके तमाम तर बॉडी ऑर्गन्स जो हैं दे कम अक्रॉस व्हाइल फाइटिंग विद सो मेनी थिंग्स अराउंड। तो ये मसले मसाइल उनको कॉन्स्टेंटली हो रहे होते हैं। तो उनकी बॉडी के ऊपर जो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है इनका लोड काफी ज्यादा होता है। तो डेली रिक्वायरमेंट आपके लिए कितनी जरूरी है? उन्होंने कहा भाई आप एक अच्छे अमाउंट में जो है वो ऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए। एक कोई भी क्वांटिफाई अभी नहीं किया गया है बट अगेन जैसा कि आपने देखा है कि हर एक की अपनी अपनी एक डेली रिक्वायरमेंट सेट की गई है। लेकिन एज फार एज इम्पोर्टेंट कहा यह जाता है कि बैलेंस डाइट लें, मौसम का फल खाइए। व्हाट डज इट मीन? दैट नेचर हैज डिसाइडेड यू to give the important micronutrients of that time which is required by your body in that season. ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी सी सेइंग है जिसमें मैंने आपको ये दिखाना था कि जो प्रॉफिट के तमाम तर पसंदीदा खाने थे या पसंदीदा चीजें थी, ये उनके चंद नाम हैं जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। और डेट्स के बारे में तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है कि जो है ये आपको अपनी डाइट में शामिल रखना चाहिए और खाना चाहिए। ठीक है। ये तमाम चीजें जो हैं वो आप यहाँ देख रहे हैं, फिग्स है, मिल्क है, मेलन है, विनेगर, ऑयल, ऑलिव ऑयल, मशरूम, ग्रेप्स, वाटर, पोमेग्रेनेट, बैरले, हनी। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनको आपके प्रॉफिट ने भी जो है वो प्रॉपर एडवाइसेस दी हैं, आपको गाइड्स मौजूद, गाइडलाइंस मौजूद है, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, राइट। सो एनी क्वेश्चंस सो फार? प्लीज आई वुड लाइक टू हैव एनी कमेंट बिकॉज आज प्रॉब्लम ये हुई है कि थोड़ा सा हमें जो टाइम फ्रेम कम मिला है एंड वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स बिकॉज थोड़ा सा कंटेंट अच्छा था, हैवी था, थोड़ा लोडेड हो गया था लास्ट टाइम, दैट्स व्हाई आज मैंने इसको थोड़ा सा कीप एंड क्वाइट रखा है। इफ यू वांट any questions so far, any one of you?
So can we start a new topic today? If you allow me, Sat, we can start a new topic, or otherwise we can have a discussion on anything which has been discussed today. So let's an important message for you, all of you, that you have to eat and drink, but do not waste. कुछ अंदाजा है आपको? Okay, Aisha, thank you for your answer. I hope that everyone is sleep is not sleeping right now. Yes, please. एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये भी है कि आपको शायद ये आइडिया हो कि आप जितना खाना खाते हैं उतना ही अगर आप अपनी प्लेट्स में निकालते हैं, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसे फिनिश करें। इस पिक्चर में आप लोग बकायदा देख सकते हैं कि समवन इज हु इज जस्ट थ्रोइंग आउट द फूड, एंड वो बहुत ज्यादा उसने अपनी प्लेट में भी निकाला हुआ है और वो थ्रो कर रहा है, एंड द अदर पर्सन हु इज हंग्री एंड ही इज टेकिंग फ्रॉम द सिमिलर बास्केट। सो इसका मैसेज ये, थैंक यू अली, जो आप लोगों का जवाब जो अगर मुझे आता है तो मुझे पता चलता रहता है हाउ मच यू इंटरेक्टेड, हाउ मच यू आर इनटू द थिंग्स। तो ऐसे मुझे अंदाजा नहीं होगा कि आप क्या चाहते हैं, आप उसको कंटिन्यू चाहते हैं, आप उसको रेस्ट देना चाहते हैं। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहिए तो मुझे पता चलता रहे मेन इंपॉर्टेंट मैसेज आपको क्या मिल रहा है इस पिक्चर को देख के। तो एक बड़ा एक क्रूअल सा फैक्ट है जो, जी आयशा, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द फूड, ठीक है ना, गेट्स वेस्टेड एवरी डे इन द वर्ल्ड। आपको समझना चाहिए इस बात को कि जो भी प्रोडक्टिविटी होती है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी द क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स को अगर आप देखें, क्रॉप्स उगाने में, उनको यहाँ तक लाने में बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। ऐसे नहीं क्रॉप्स आ जाती, बहुत मेहनत दरकार होती है। और आप लाते हैं, आप बनाते हैं, आपने आधा खाया आधा फेंक दिया, तो आप सोचेंगे कितनी बैकग्राउंड से जो सोचना शुरू करें कि जब इन्वेस्टिंग आपकी जो हार्वेस्टिंग के अंदर थी उसके ऊपर इफेक्ट आया, आपके किसानों ने काम किया, आपके लोगों ने काम किया, वो उसकी ट्रैवलिंग में आपका पैसा इस्तेमाल हुआ, फिर वो आप तक पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एग्जैक्टली, आप यू नीड टू थिंक अबाउट इट। हमें हमेशा ना इस तरह से सोचना चाहिए कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अभी लॉकडाउन में रह के आप लोगों को काफी अंदाजा हुआ होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर भी हम रह सकते हैं। पहले हमें ऐसा लगता था कि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो शायद हमारी लाइफ गुजारना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नाउ डेज वंस वी आर लॉक डाउन और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने अपनी लाइफ को, चीजों को रिस्ट्रेन किया है, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक आवर माइंड्स पॉजिटिव।
और हम इस वक्त हमें अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा टाइम भी ये दिया है कि वी कैन मेडिटेट आवरसेल्व्स, वी कैन कनेक्ट टू अल्लाह सेइंग, जो अल्लाह ताला हमसे करवाना चाहते हैं, जो एक्चुअली हमारा रोल होना चाहिए towards your family, towards your roles, towards your important roles. आप उनको किस जगह पे आपकी जरूरत है, isn't it? So हमें ये भी सोचना चाहिए, there are certain bad things which are happening nowadays in terms of the news every time, the breaking news every time. This is making you frustrated around there, depressed around there. There are certain good things as well, that you are being with your family, you are there, and you can see, you can share your feelings, and you can talk to them, you can have a good time with quality productive time with all of them. एंड जहाँ आपके माँ बाप को आपकी जरूरत है, जहाँ आपके बहन भाइयों को कहीं ना कहीं, so this is much more important, that as a person we should understand the all the right pathways which have been told you by the prophet. sayings these आपको बताती हैं, कुरान पाक की रोशनी आपको बताती है कि आप जो है उसमें से अच्छी अच्छी चीजें सीखें, ठीक है ना, और अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को खत्म करें, पॉजिटिविटी की तरफ आए, एक अच्छी जिंदगी गुजारने की तरफ आए. इज दिस राइट? सो अनदर इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम माई साइड, कि जहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके अराउंड सराउंड जो लोग भी हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग सम स्टाफ, आई एम हैविंग सम फैमिली, इफ आई एम अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, सो आई शुड प्रोग्रेस, और ये प्रेफर करूँ मैं कि सभी को ये मैसेज देना कि आपने हेल्दी खाना है, एक्टिव रहना है. दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर एज फार एज योर बॉडी इज कंसर्न. देखिए हर चीज जो है वो वक्त के साथ चलती है, लेकिन एक कहानी मैं आपको इस तरह की छोटी सी ये बताऊं कि अगर आपकी बॉडी में आप अच्छा फ्यूल आज नहीं डाल रहे हो, तो इसके रिजल्ट्स आपको 10-15 साल के बाद पता चलने शुरू हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा छोटी उम्र में उसकी वीनिंग अच्छे से नहीं हुई है और उसको अच्छे हेल्दी प्रोडक्टिव फूड्स नहीं खाने को मिले हैं, तो उसकी बॉडी जो है वो लेटेंटली, अगर आप देखेंगे, स्टंटिंग फेज में चली जाएगी, ठीक है ना, और डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में चली जाएगी. बड़ा होते होते तक उसको मे बी कोई क्रॉनिक डिजीजेस डेवलप हो जाएंगे. तो हर चीज जो है ना, ये आपका जो गुड फूड होता है, जिसे आप गुड इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं, तो ज्यादातर मेरा ख्याल है पैसे बचाने से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है वो आपकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए. आप जो खाते हो, आप जिस तरह रहते हो, आप जो अपनी बॉडी के लिए कर रहे हो, obviously if you need some exercise, do it, plan it, work it out. ठीक है? Is that all right? आज के क्वेश्चंस में मैं ये पूछना चाहूंगी, is that all clear to you? गुड मरियम. और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग इंटरेक्ट करते हैं. आज बच्चों ने इंटरेक्ट नहीं किया, इसका रीजन क्या है? जल्दी से बताएं, मेरा टाइम खत्म होने वाला है. Why आज सब लोग स्लीपी स्लीपी हैं? Why is that? Okay अली. मरियम टेस्ट था ना? ओ, टेस्ट था. ओके. तो ओके, सो यू आर वर्किंग सिंस 8:30, राइट? अच्छा, और क्या रीजन है भाई? And how is the lockdown going on? Everyone, just be quick. I have just 2 minutes left. Boring? Oh, anything else? Chalini, try to make it more something entertaining.
try to do something else which is not a usual part of your daily routine. If you like the gardening, just plant some new plants. Okay, if you like some painting, just start painting. And if you like some any other of your hobby, just get involved in your hobby. ठीक है ना? मैं तो यही कहूँगी, just just start with your hobbies. ठीक है? हाँ जी, प्रॉफ तो देना ही होगा. हॉबी कर कर के भी आप लोग थक गए हैं. ओह, ये तो बड़ा सैड हो गया. सो जस्ट डू इट वट एवर यू डोंट लाइक टू डू इन योर नॉर्मल रूटीन. ठीक है ना? ओके मारिया. सोचना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, बिकॉज यू हैव टू फॉलो, एंड दिस इज फॉर योर सेफ्टी. ठीक है ना? तो मैसेज यही है कि जी स्टे होम, स्टे सेफ. राइट. और आज का प्लान जो था वो डबल लेक्चर का था, और वो नहीं हो पाया, but still we will try to compile it up again in the next lecture, and I'm just waiting for your next speaker to come up online.